Hello, children. This is the second chapter of Indian economic development, Indian economy from the period 1950 to 1990. Children, basically, we are going to study in the second chapter regarding the 5-year plans, its goals, and the different policies which have been adopted for agriculture, industry, and foreign trade sectors, and how the policies would be developed from the year 1950 to 1990. Apart from that, we are also going to study about the merits and limitations of this regulated economy. In the previous chapter, we have seen that how colonial rulership has destroyed Indian economy and the other sectors of economy. So, after getting independence on 15th August 1947, the main problem in front of our leaders is how to adopt an economic system which could cope up with all the problems we are facing. At that time, the Prime Minister of India was Pandit Jawaharlal Nehru. So Pandit Jawaharlal Nehru want to adopt socialism और socialist economy. जैसा कि आपने last year पढ़ा हुआ है, the types of economic system और types of economies, जो कि हमने देखा था capitalism, socialism and mixed economy. We have seen about 3. And you all know that India deals with the mixed economy system. So Soviet Union, former Soviet Union, adopted the policy of socialism, but it is not possible in the country like India, where we are not possible to shift the ownership pattern of land and other properties of its citizens in a way that it was done in the former Union. इसको हम दूसरे ओनरशिप को डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में हम चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को यहाँ पे लीड कर सकते थे. इसीलिए हमने कोशिश की कि सोवियत यूनियन ने जो पॉलिसी अपनाई थी, दैट इज सोशलिज्म, उसके कुछ अच्छे गुणों को लिया जाए, द मेन की पॉइंट्स ऑफ दैट एंड द फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आल्सो. सो इस तरीके से हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी को डेवलप किया. So India would be a socialist society with a strong public sector, but also with private property and democracy. Okay. तो इस तरीके से ये प्लानिंग की गई. After that, the next thing comes, the next topic, that is types of economic system. Children, here you can see that 3 questions are given that of the economy, that what goods and services should be produced in the country, then how should the goods and services be produced, and last one, how should the goods and services be distributed among people. We have discussed about this in last year in microeconomics. So one answer regarding this is given that it depends on the market forces of supply and demand. ये भी हमने last year microeconomics में पढ़ा हुआ है that in a market economy जहाँ पे पूरा emphasis इसके ऊपर दिया जाता है capitalism के ऊपर, और यहाँ पे डिमांड के हिसाब से ही कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और उसके हिसाब से डोमेस्टिक या फॉरेन मार्केट में गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं. इसका ठीक उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे क्या किया जाता है, it totally depends upon the government. Government decides what goods are to be produced in accordance with the needs of the society, and here the producer sector decides, capitalist economy, the purchasing power के according वहां पे decide किया जाता है कि जो किया जाएगा वो पुअर के लिए किया जाएगा या रिच सोसाइटी के लिए किया जाएगा. और कैपिटलिस्ट हमेशा अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं और सोशलिस्ट हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और उसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है, जिसे हम एक तरीके से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, और हमने कैपिटलिज्म इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी के नाम से पढ़ा था. बट द लास्ट विच वी हैव अडॉप्टेड दैट मिक्स्ड इकोनॉमीज. So most economies are mixed economies that the government and the market together answer the 3 questions of what to produce, how to produce, and how to distribute, and what is produced. So in mixed economy, the market will provide whatever goods and service it can provide well, produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do. तो यहाँ पे भी इंडिया में इसी पॉलिसी को अपनाते हुए
बहुत सारी सब्सिडीज या बहुत सारी फैसिलिटीज पीपल को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, और एक दूसरे तरीके से कैपिटल इकोनॉमी की तरह बहुत सी ऐसी चीजों का भी प्रोडक्शन होता है प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू, जिसको लोअर से ऊपर या पुअर से ऊपर के जो लोग हैं या रिच पर्सन है वो उसको अडॉप्ट कर सके। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक कम्स, दैट इज प्लान। व्हाट इज अ प्लान? हमने अभी बताया आपको 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग, तो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्लान एक्चुअल में होता क्या है। तो this question also can come for 1 mark question. So plan spells out how the resources of a nation should be put to use. It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specified period of time. मतलब प्लान एक नेशन जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अपने सामने रख के अचीव करना चाहती है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो बनाए जाते थे वो 5 years के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते थे। So our plan documents not only specify the objective to be attained in the 5 year of a plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years. तो हमारे जो प्लान्स किए जाते थे उसके दो तरीके के गोल्स होते थे, एक लॉन्ग टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स होते थे जो 5 ईयर के अंदर जिन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करते थे, और इसके साथ ही कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स रहते थे जो 5 इयर्स में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो जाता था, और इसलिए उनके ऊपर भी जो फंड रहता था या उनके ऊपर जो पॉलिसीज रहती थी वो लॉन्ग रन में चलती थी। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, इसके साथ पॉवर्टी है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको 5 इयर्स में हटाना या दूर करना पॉसिबल नहीं है। सो इन इंडिया the Industrial Policy Resolution of 1988 and the directive principles of the Indian Constitution reflected this outlook. In 1950, the Planning Commission was set up with the Prime Minister at its chairperson. The era of 5-year plans had begun. हमारे यहाँ जो प्लानिंग कमीशन के थ्रू 5-year plans का जो स्टार्टिंग हुआ था वो इन द ईयर 1950 में हुआ था, और इसी के साथ इसी साल क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था। Now come to the next point, that is the goals of 5-year plans. Here few goals you are getting. ये एक important question है जिसमें से एक 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन निकलता है, that the goals of 5-year plans. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक प्लान स्पेसिफाई या एक प्लान सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उसके सामने कुछ स्पेसिफाइड गोल्स है। अगर आपके सामने स्पेसिफाइड गोल्स नहीं है किसी पर्टिकुलर प्लानिंग के लिए तो आप उस चीज को सही तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। द गोल्स ऑफ 5 years आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। यहाँ पे हमारे पास लगभग 4 मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि इस 5-year प्लान के गोल्स थे। This does not mean that all the plans have given equal importance to all these goals. Due to limited resources, a choice has to be made in each plan about which of the goals is to be given primary importance. जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी कंट्री एक पुअर कंट्री बन चुकी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी थी, इसलिए हमें बहुत जरूरत हो गई थी कि हम एक पर्टिकुलर 5-year प्लान के अंदर कुछ स्पेसिफिक गोल्स के ऊपर ही अपना फोकस रखें, ना कि हम सारे गोल्स के ऊपर अपना फोकस को शूट कर दे। अगर हम ऐसा करते तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो हर एक 5-year प्लान में कुछ स्पेसिफिक गोल्स को लेके उसके ऊपर वर्क किया गया था। Nevertheless, the planners have to ensure that as far as possible, the policies of the plans do not contradict these 4 goals. और इसके साथ ही जो प्लानर्स थे उन्होंने कोशिश की जो मेन 4 गोल्स थे जो कि थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, इन चारों में से ही हम कॉन्ट्राडिक्ट कुछ उल्टा ना करें। चारों ही गोल चाहे हम कोई भी सेक्टर को चूज करें उसके ऊपर एम्फेसिस दे उस 5-year प्लान में, लेकिन ग्रोथ होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर का, उसमें कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस मतलब हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, और इक्विटी
एक बराबरी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं थी, लोगों में जो अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था, उसको कम करते करते एक इक्वल पोजीशन पे, इकोनॉमिक पोजीशन पे लाया जा सके, ये मेन जो गोल्स थे उनके ऊपर ही काम किया गया। So the first objective, that is growth. It refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. इसमें हम देखते हैं कि हमारी कंट्री की जो कैपेसिटी है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रोथ कर सकते हैं या कितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं. It implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services. हम एक तरीके से क्या कर सकते थे, या तो हम सपोर्टिंग सर्विसेज को बढ़ाए या फिर हम प्रोडक्टिव कैपिटल मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाए, और इन सबको बढ़ाना ही जरूरी था क्योंकि हम एक ऐसी कंडीशन पे थे जहां पे हमारे लिए हर एक चीज में डेवलपमेंट करने की पॉसिबिलिटी थी. A good indicator of economic growth in the language of इकोनॉमिक इज स्टेडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगर हम सही तरीके से सारे सेक्टर्स को डेवलपमेंट करेंगे तभी जाके हम जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना एक पर्टिकुलर कंट्री का ग्रॉस प्रोडक्ट या जो ग्रॉस प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है. द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? इट इज द मार्केट वैल्यू, मतलब जिस कीमत पे उसे मार्केट में बेचा जाता है, उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो रहती है किसी कंट्री की, वही उसकी जीडीपी कहलाती है. यू कैन थिंक ऑफ द जीडीपी एज अ केक एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक. इफ द केक इज लार्जर, मोर पीपल कैन एंजॉय इट. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है. इट सेज दैट जीडीपी, यू कैन इमेजिन जीडीपी एज अ केक. जितना ज्यादा जीडीपी होगा उतने ही ज्यादा लोग उसका एंजॉयमेंट कर सकेंगे. मतलब अगर केक ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका बिगर साइज ऑफ केक मिल सकेगा. इफ द केक इज लार्जर, मोर पीपल कैन एंजॉय इट. It is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy, in the words of the first 5-year plan, a more rich and varied life. ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम अपने प्रोडक्शन को ज्यादा करें, ताकि जो फर्स्ट 5-year प्लान में प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ही ध्यान दिया गया था, ताकि लोगों के पास इनकम भी बढ़ सके. इसके बाद ही एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. यहाँ पे आता है द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स. यहाँ पे कुछ अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. द फर्स्ट वन इज सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर. So in some countries, growth in agriculture contributes more to the GDP growth. बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़े होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट हमारे यहाँ पे जो जीडीपी में था वो कम है. पहले भी कम था और अभी भी कम है. So while some countries the growth in the service sector contributes more to the GDP growth, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ये डेवलप ही नहीं हुए थे. हमें 5-year प्लान्स जब स्टार्ट किए गए, हमारे सामने एक बड़ा जो प्रॉब्लम था उन्हें डेवलप करने का था. आफ्टर दैट द नेक्स्ट कम मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा. अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हो, a farmer can increase the output on the farm by using new seed varieties instead of using old ones. Okay, factory can increase output by using a new type of machine. Adoption of new technology is called modernization. तो यहाँ पे आपको definition भी मिल गया that adoption of new technology is called modernization. तो इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि न्यू टेक्नोलॉजी से हमारा जो सोशल आउटलुक है वो चेंज हो जाए, सच एज रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड मेन. जैसे
सोशल जो आउटलुक है वो मॉडर्नाइजेशन के साथ हमारे यहाँ चेंज नहीं हुए. इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक इंडिया, वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम व्हाइल मेन वर्क. ये जो सिस्टम था ये पहले यही था और धीरे धीरे इसमें मॉडर्न सोसाइटी की वजह से धीरे धीरे ये चेंजेस आए. अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, इन बैंक, school, etc. And such a society in most occasions is also prosperous. धीरे धीरे हमारे सोशल आउटलुक में भी इसके साथ साथ ईयर बाय ईयर चेंजेस आते गए. वरना पहले इंडिया में, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, कि इंडिया में वुमेन का जो एजुकेशन का परसेंटेज था वो काफी कम था, अराउंड 7% के आसपास था. Now the next topic comes self-reliance. A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. या तो हम खुद के पास जो रिसोर्सेस है उनका यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, अपनी जो जरूरत है कंट्रीमेन की उनको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब दूसरी कंट्री से उस चीज को खरीद के अपने पास लाना पड़ेगा. तो एक बहुत ज्यादा जरूरत थी. फर्स्ट 7 5-year plans में इंपॉर्टेंस दिया गया सेल्फ रिलायंस, विच मीन्स अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दोज विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री. ठीक है. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries. अगर हम अपने imports को कम करेंगे और अपने exports को बढ़ाएंगे तो न सिर्फ ये हमारी foreign exchange को बढ़ाएगा बल्कि हमें एक रिच कंट्री बनने में भी हेल्प करेगा. इसलिए शुरू के जो 7 5-year प्लान्स, मतलब आफ्टर 1950 अराउंड 35 years, दैट इज अराउंड 1985 तक कोशिश की गई कि हम सेल्फ रिलायंस के ऊपर ध्यान दें ताकि हमें इंपोर्टेड गुड्स की सप्लाई को हम धीरे धीरे कम कर सके. इसका मतलब है फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन कैपिटल में भी इंडियंस की सोवर्जिनिटी रहे, मतलब वो फॉरेन इंटरफेरेंस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हम खुद अपनी पॉलिसीज और सेल्फ रिलायंस के साथ ये सारे काम को कर सके. नेक्स्ट टॉपिक कम्स, दैट इज इक्विटी. Growth, modernization, and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस था उसको कम करने की जरूरत थी. मतलब रिच के पास से जो पैसा था वो थोड़ा पुअर के पास आना चाहिए ताकि वो क्या किया जा सके, पुअर अपनी जो नेसेसिटीज है उसको कंप्लीट कर सके. So it is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich. इसलिए कोशिश की गई कि जो पुअर्स है उनके वेलफेयर के लिए जो रिच, जिनके पास एक्सेस मनी है या जिनके पास ज्यादा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की वजह से वो ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, उनसे टैक्सेस के थ्रू उन चीजों को लेके उसका वेलफेयर के लिए काम किसके लिए किया जा सके, पुअर सेक्शन के लिए, ताकि पुअर सेक्शन भी अपना डेवलपमेंट कर सके. एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स. हम इतनी गरीब कंट्री थे कि हमारे पास बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं होते थे. बेसिक नीड्स सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड. जो अभी मैंने कहा अमीरी गरीबी के भेद दूर करना था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसको प्रॉपर करना था, दैट शुड बी रिड्यूस. मतलब सबके पास बराबर की इनकम होनी चाहिए, ना कि किसी के पास करोड़ों की इनकम हो और किसी की इनकम 100 रुपए में भी हो. ठीक है. So let us now see how the first 7 5-year plans covering the period 1950 to 1990. इसके लिए हमारे पास एक, मैं आपको टेबल शेयर करूंगी जहां पे आपको सारे 5-year plans के बारे में डिटेल में स्टडी करने के लिए मिल जाएगा. ओके, आफ्टर दैट 1991 से हमने क्या क्या चेंजेस लाए थे इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर 3. और इसके बाद हम डिफरेंट, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड, इन तीनों सेक्टर्स में और सर्विस सेक्टर, इसमें जो भी चेंजेस आए थे पॉलिसीज में वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहती हूँ, दैट इज प्लानिंग कमीशन. That planning commission that is initiated by a person named
Mr. Mahalanobis, who is also called thinkers contributed to formulation of our 5-year plans, among them the name of the statistician Prasant Chandra Mahalanobis stands out. Okay, जो प्लानिंग कमीशन के जो पायोनियर थे या जो जिनको हम कह सकते हैं कि मेन लीड कर रहे थे जिस इंडियन, उनमें नाम आता है महालनबीस के बारे में. मिस्टर महालनबीस was born in 1893 in Calcutta. प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनकी स्टडीज हुई थी. बेसिकली जो 5-year प्लान का जो आइडिया था वो महालनबीस का ही था. Planning in the real sense of the term began with the second 5-year plan. The second plan, a landmark contribution to the development in general, laid down the basic ideas regarding the goals of Indian planning. तो जो goals थे वो second 5-year plan से basically specified किए गए. The plans are based on the ideas of Mahalanobis. ये जो हमने अभी plans के बारे में पढ़ा था, these all ideas are of Mahalanobis. In that sense, he can be regarded as the architect of Indian planning. एक क्वेश्चन निकलता है, who is the architect of Indian planning, and the answer will be PC Mahalanobis, Prashant Chandra Mahalanobis. Okay, so this is one point which I want to introduce to you, and the other one is that is the service sector. सर्विस सेक्टर के बारे में आपको पता ही है, जैसे जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए और हमारी जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हुई और कुछ सर्विसेज की जो जरूरत थी जो कि जॉब सेक्टर है, उस सेक्टर में भी बहुत से लोग शिफ्ट हुए. तो ये सारा शिफ्ट जो धीरे धीरे साल दर साल होता गया, बट बाय 1990 द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर वाज 40.59%. ये हमारे यहाँ पे बढ़ गया. एग्रीकल्चर को भी सर्विस सेक्टर ने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया. इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इन तीनों का जो शेयर है इसके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सो फॉर दिस वीडियो this is all. In next video I am going to start with all 3 different sectors and its policies. Okay, thank you.